Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will deal with engineering economics. So content of this video will be introduction to engineering economics, importance of engineering economics, purpose of this course, how this course helps engineers to take better decisions, role of an engineer in a business firm, and how an engineer can contribute towards organizational objectives. So let's see what is the meaning of engineering. So we all know that we have resources available and we work on these resources and get something which is useful for the person. So basically we have materials, we have the resources on which we work. The work on the material is using certain procedure. Laws of science are applied and ultimately we get some end product which must be beneficial for the mankind. So basically we can define engineering as it is an activity in which materials are acted upon by forces of nature for getting something beneficial for the mankind. So this is the ultimate objective of engineering activity. Okay, so what is economics? Economics is the social science that deals with the production, contribution and consumption of goods and services. Now we will discuss why engineering economics is important. Basically, in early days when engineering activity started, the main purpose was to get something new, to do something innovative. So the purpose was to do something which gives you some satisfaction, which gives a value to it. This was our previous concept. Later on, resources came into picture, then engineers had to think how to economize. So basically, the today's world, there is energy crisis all over the world. There is a tough competition in the market. Without economics, keeping in mind, any engineering activity will be a failure. So we can say that without engineering, without economics, engineering is a failure. Any project without economics is a failure. So हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो फेलियर है. उस प्रोडक्ट की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी. सो इकोनॉमिक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किसी भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए. सो वी कैन डिफाइन आवर इंजीनियरिंग in a broader way, like engineering deals with the material and forces of nature with economical use for the benefit of mankind. Okay, so what is the role of an engineer in an organization? अब ऐसे होता है कि इंजीनियर्स को दो तरह के इन्वायरमेंट में काम करना होता है. एक हमारे पास आता है फिजिकल इन्वायरमेंट और एक हमारे पास आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं. एक इंजीनियर को अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज को यूज़ करते हुए, नेचुरल साइंसेस को यूज़ करते हुए, अपने एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हुए एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना होता है. ठीक है, और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बन जाती है तो फिर उसका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट शुरू होता है जिसमें उसको इस चीज़ को सामने रखना होता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, उस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, इस प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, और इस प्रोडक्ट के हमारे पास कंज्यूमर्स कौन है, हमारे एंड यूजर्स जो है वो इस प्रोडक्ट को कितना यूज़ करेंगे या फिर इसकी डिमांड कितनी है. ठीक है, सो इंजीनियर को इन दोनों इन्वायरमेंट से फेमिलियर होना चाहिए. अगर कोई इंजीनियर ये कहता है कि उसका जो रिलेशन है, जो उसका जो वास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट से है और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट से नहीं है, सो वो आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स को फेस करना होगा, आगे जाके उसको फेलियर को बर्दाश्त करना होगा. क्योंकि आज के दौर में इंजीनियरिंग को विदाउट इकोनॉमिक्स एज अ फेलियर कंसिडर किया जाता है, जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था. सो एक इंजीनियर जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से भी फेमिलियर होता है और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट से भी फेमिलियर होता है. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई इंजीनियर है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ उसकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में एक्सपर्टीज़ हो बल्कि वो इकोनॉमिकली भी चीज़ों में एक्सपर्ट हो. उसको पता हो कि उसके पास जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट किस तरह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हो सकती है, किस तरह उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है. इस तरह उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो प्रोडक्ट वो जो डिज़ाइन कर रहा है उसकी लाइफ कितनी है, उसका लाइफ टाइम कितना है.
क्या वो 30 ईयर्स के बाद उसकी जो लाइफ है वो उसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी या फिर उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसी तरह क्या वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, इंजीनियर जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है, उससे उसकी कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो ये है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो आगे इस चीज़ को कितना यूज़ कर रहे हैं और इससे वो कितने सेटिस्फाइड है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे हमारे प्रोडक्ट से, तो वो इन फ्यूचर हमारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो उनको नहीं खरीदेंगे। सो इस तरह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो लॉस पे चली जाएगी। सो इंजीनियर्स को इन दोनों एनवायरनमेंट में काम करना आना चाहिए ताकि उसे भी फ़ायदा हो और अपनी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसमें भी उसे फ़ायदा हो। सो यहाँ हमारा एक और क्वेश्चन भी कवर होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कोर्स, या फिर हमें ये कोर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। सो किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इस कोर्स को पढ़ाने की जो वजह है वो यही है कि क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमारा इंजीनियर्स के ऊपर जो मेन फोकस होता है वो फिज़िकल इन्वायरमेंट के ऊपर होता है, जिसमें हम इंजीनियर्स को एक्सपर्ट बनाते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स उसके इम्प्रूव करवाते हैं, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स वो जो परफॉर्म करते हैं लेबॉरेटरी के अंदर, वो सारे एक्सपर्टीज़ उसकी इसमें होती हैं। ठीक है, सो अगर एक इंजीनियर को इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के साथ फेमिलियर नहीं किया जा रहा तो आगे जाके उसे भी नुकसान होगा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होगा। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज़ टू फेमिलियराइज एन इंजीनियर विद बोथ इन्वायरमेंट। Okay, so what is the contribution of an engineer in achieving organization objective? अब सबसे पहले तो हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो ये होता है कि हमारी जो कंपनी है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी सेल हो रही है और उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो उनकी प्रोडक्ट से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, और जो प्रोडक्ट वो डिज़ाइन कर रहा है इसके थ्रू उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने अरसे तक वो सस्टेनेबल रहेगी। सो इन तीन ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद एक इंजीनियर क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट को इस लिहाज से डिज़ाइन करता है सो उसकी जो प्रोडक्ट हो वो उससे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। सो इन दिस वे एन इंजीनियर कैन कंट्रीब्यूट in achieving organization's objective. So this is all for today. Thank you so much.